Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So today we'll talk about the complements. Please stop talking now. The class has started. Okay. So let's quickly. There's no need of review. I think I can scan it quickly because you've already tested out. So we said analog are continuous signals with respect to time, and digital have discrete value. And in the number system, we said we have a base, which is called radix, right? And we have digits that is going from 0 to r minus 1, right? Conversion of numbers, we said from base r to decimal, right? So base r to decimal is basically how you do that? How you convert this? Power expansion, right? So expand power series and adding them. That's the only, so, and you are getting a decimal. And from decimal to base R? Okay, real part repeated division and integer part repeated multiplication with the required base. Okay, fine. So let's talk about complements. So what is complement basically? Maths or algebra, what is complement? Opposite? Is it a negative number? If I say 3, what is the complement of 3? Yeah, मतलब एक negative number और complement में कोई फर्क है या same है? जी? जबरा पढ़ा हुआ है ना बेटे? मैं नई बात तो नहीं पूछा मुख्य बात तो नहीं पूछा आपने बूलियन अलजेब्रा सब कुछ पढ़ के आए हुए एफएससी में पढ़ा है ना ये पार्ट ऑफ योर सिलेबस है ना जी complement anybody जी anybody can answer this universal set में से let's say अगर मैं कहूँ कि 5 है तो उसका complement क्या होगा universal set क्या होगा नहीं that's not the right answer वो sets में complement का concept है लेकिन the number in let's say we have a different concept of complement. जी? Sign opposite हो जाता है 3 का जो complement है वो minus 3 होगा 1 over under what rules? Complement is not like that. Yes. 3 को 0 कर देंगे और 0 का complement देंगे तो 3 कर देंगे complement कोई नहीं जिसमें क्या हो 3 ना नहीं वो सेट्स का कॉन्सेप्ट उन्होंने बात पहले कर दिया होता लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेट जरा डिफरेंट है वी हैव नंबर्स लाइक इफ आई टॉक अबाउट द डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास डिजिट्स क्या हैं 0 से 9 राइट एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वील सी व्हाट एंड वील लर्न व्हाट इज द डेफिनेशन सो कॉम्प्लीमेंट्स आर सिंपल सिंप्लीफाई सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्स हेल्प इन सब्ट्रैक्शन लेकिन कंप्यूटर के पास एडर है ठीक है अगर उसने a माइनस b करना है वो क्या करेगा e का कॉम्प्लीमेंट लेगा और ऐड कर देगा सो दैट्स द कांसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इट बेसिकली हेल्प्स इन सब्ट्रैक्शन ठीक है सो वी डू सब्ट्रैक्शन बाय एडिंग बेसिकली बिकॉज कंप्यूटर के अंदर हमें एडर है सब्ट्रैक्टर नहीं है हमारे पास तो हम क्या करते हैं दूसरे नंबर का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं एंड नाउ वी विल डिफाइन व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट एंड देन वी ऐड एंड देन वी गेट द नंबर अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या है सिंपली डेफिनेशन क्योंकि a माइनस बी इज लाइक a प्लस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ b राइट और कॉम्प्लीमेंट इटसेल्फ क्या चीज है कॉम्प्लीमेंट अच्छा यहाँ पे अच्छा ये अभी फर्दर विल सी देयर 2 टाइप्स राइट क्योंकि हमने कोई भी नंबर सिस्टम की बात की थी तो उसमें क्या है बेस r है डेसिमल में बेस क्या है 10 और बाइनरी में क्या है बेस 2 राइट सो वी हैव 2 टाइप ऑफ complements. One is called the radix complement. Radix क्या है? Base, right? So अगर मैं decimal number system की बात करूँगा, तो ये जो R's complement है या radix complement है, वो क्या होगा? Decimal. Tens complement. Because my base is 10, right? So here I'm talking about tens complement. Or in case of binary, it will be 2's complement, right? And another one is diminished radix complement or r minus 1's complement.
यानी अगर r मेरा बेस 10 है तो ये क्या बन जाएगा 9's कॉम्प्लीमेंट, और बाइनरी के केस में 1's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यू गॉट द आइडिया। अब हम इसको देख लेते हैं कि बेसिकली कॉम्प्लीमेंट है क्या, कैसे लेते हैं। ठीक है, बट बेसिकली द आइडिया ऑफ द कॉम्प्लीमेंट doesn't exist in maths. Normal maths में ये doesn't exist, right? Because there the negative number का concept है कि अगर हम एक नंबर दूसरे नंबर को concept है तो वो माइनस करते हैं। ठीक है, लेकिन ये with the help of computer या Boolean algebra में ये complement का concept आपको मिलेगा। ठीक है, और complement is like taking a not operation. A not operation अगर हमारे पास 1 है तो उसका complement क्या होगा 0, अगर 0 है तो उसका complement 1 होगा। So we'll see the basic definition, right? So let's talk about r minus 1's complement first, right? Which is basically 9's complement and 1's complement. Or in case of let's say hexadecimal, क्या होगा 15's complement. ठीक है? अच्छा, so let's say we have given a number which is base r having n digits. तो आपके पास एक n बड़ा कैपिटल n क्या है, एक नंबर है। Okay, let me write the number. एक n मेरे पास नंबर है, ठीक है, और लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ डेसिमल, राइट? लेट्स से मेरे पास है 3 4 5 6, राइट? सो नंबर, सो आई एम सेइंग दिस इज माय n, कैपिटल N, which is the number and having small n digits. So n क्या है इसमें 1 2 3 4, small n is 4, right? So I have 4 digits और इसकी बेस क्या है बेसिकली r क्या है। अगर इफ आई एम सेइंग दिस इज द डेसिमल, मे बी समटाइम डेसिमल को हम 10 लिखते ही नहीं है बिकॉज वी आर मोर फेमिलियर विद द डेसिमल, बट इफ वन वांट टू क्लैरिफाई दिस इज माय बेस, राइट? सो दिस इज माय बेस एंड दिस इज माय नंबर, एंड लेट्स नाउ डिफाइन हाउ टू टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। n's कॉम्प्लीमेंट, इसका मैंने n प्राइम या n कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो मैं कैसे लूंगा। ठीक है, so उसका सिंपल फॉर्मूला है कि the definition says r minus 1's complement of n is defined as r raised to power n, right? n is therefore r is 10, right? Base is 10 minus 1 minus the number, right? So can we apply this formula? So if we apply the formula, what I get basically, क्या मिलेगा जी मुझे 10 raised to power 4, right, minus 1, right, minus the number which is 3 4 5 6. ठीक है, so I apply a definition. अब आगे चल के हम इसके शॉर्टकट्स भी देखेंगे, it will be very simple, right? So इससे लेकिन हम एक conclusion निकालेंगे डेफिनेशन को लेके and we'll make a conclusion. ठीक है, so 10 raised to power 4 क्या होता है जी 4 zeros basically, it's 4 zeros here, right? minus 1 minus the number, right? So ये क्या बन जाएगा इसमें मेरे पास 4 9s आ जाएंगे, isn't it? minus the number, और ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा जी 9 में से ये गया 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। So this is my complement of n. Complement of n is this. ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर इसको क्लोजली मैं लिखूं और कोई और नंबर आपको दे दूं और उसका मैं लेट्स से मैं कहूं कि उसका 10th complement, सॉरी ये 9th complement या r minus 1 मीन 9th complement, ये भी क्लियर कर लें, इट्स अ 9th complement। ठीक है, 9th complement of n is this, right? तो बेसिकली मेरी ट्रिक क्या है, व्हाट इज द ट्रिक? जो भी नंबर है उसको हर एक को मैं 9 से सब्ट्रैक्ट कर, ये देखिए ना, जो भी नंबर थे मैंने 9 से सब्ट्रैक्ट किया था। अगर ये मैं फॉर्मूला जरूरी नहीं है मैं अप्लाई करूं, ठीक है? इफ आई गिव यू अनदर नंबर, राइट, सो यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज माय कॉम्प्लीमेंट। सो लेट्स जी फायदा ये होगा कि लेट्स से अगर मैं मेरे पास एक m है, कोई और नंबर है, ठीक है, m माइनस n है, तो मैं क्या m मसलन मेरे पास है 9360, राइट, और माइनस यही वाला नंबर है मेरे पास 3456,
and I want to subtract. Basically complements help me in subtraction. तो मैं क्या करूंगा, मैं इस m को इसके complement में add करूंगा. What I'll take m, which is 9360, and I take 9's complement of n, right, and which was 6543, right, and just I simply add. I'm not doing subtraction, I'm simply adding. G. G, exactly. So he has rightly pointed out कि जनरल ट्रिक भी आप कर सकते हैं. Let's say मैं अगर हेक्साडेसिमल का कोई एक हेक्साडेसिमल नंबर है, उसका 15th कॉम्प्लीमेंट लूंगा, तो वो हर डिजिट को मैं किससे सब्ट्रैक्ट करूंगा? 15. This is basically r minus 1. You are subtracting each digit from r minus 1. ठीक है, जनरलाइज कर दिया ना. अब मैं कोई भी नंबर सिस्टम बेस 5 दे दूं, तो आप हर एक को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 4. ठीक है. So, जी ये तो डिमिनिश कॉम्प्लीमेंट हुआ. जी डिमिनिश r minus 1 सिंपल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो दूसरा हम अभी डिस्कस करते हैं. जब इस बात समझ में आ जाएगी. जिसमें सब्ट्रैक्शन से हमारे पास डबल डिजिट नंबर है, उसको लिखते जाएंगे. जी अब देखेंगे हम ये आगे हम अरिथमेटिक करेंगे, लेकिन बेसिकली इट हेल्प्स. देखिए ना, इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो व्हाट आंसर आई गेट? 3. ये कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने. 6543. नहीं ये मैंने अच्छा चलें. 9360 and 3456. तो 3456 मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? 3 4 right 5 and 6. तो बेसिकली क्या आता है जी? जी n का कॉम्प्लीमेंट है. ये n का कॉम्प्लीमेंट ही लिखा है ना, मैंने इधर ऐड कर रहा हूँ. सर 9th कॉम्प्लीमेंट ही n का कॉम्प्लीमेंट होगा. जी n का ही ऑफ n, ये n का है. यानी मैंने सब्ट्रैक्शन लेने की बजाय मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया. ये देखिए ये कॉम्प्लीमेंट आ गया, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ. ठीक है. सो एंड विल सी जो आंसर आएगा उसको आगे हमने क्या करना है. तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. 8 and 9 and 15, right? इसमें क्या गड़बड़, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने. ओके ठीक है. तो हम ये बाद में रूल्स देखेंगे कि ये जो कैरी आएगा इसको हम ऐड भी कर देंगे बाद में. ठीक है. सो बेसिकली यू विल गेट द राइट आंसर. ठीक है. तो कैरी को सम टाइम हम डिस्कार्ड करेंगे, कभी ऐड कर देंगे. सो विल टेल यू द रूल्स. तो आप देखिए इसमें से ये मैं नॉर्मल 2 माइनस करता हूँ, यही आंसर मिलता है. यस सर, यही है. तो बेसिकली कंप्यूटर देखें, कंप्यूटर इज डूइंग मैनिपुलेटिंग वंस एंड जीरोस. तो अभी हम बाइनरी की भी एग्जांपल लेंगे और we will see कि basically the role of complement is subtraction. We have subtracted a number taking a complement and just simply adding it. हमने यहाँ पे ऐड किया इन दोनों को. यहाँ पे बेसिकली you see यहाँ पे मैंने ऐड किया इन दोनों को, सब्ट्रैक्ट नहीं किया. Because we had an adder. Adder क्या करता है? 2 इनपुट्स लेता है और आउटपुट सम दे देता है. और कैरी जो आता है उसको फिर दोबारा ऐड कर देता है. इन दिस केस समटाइम कैरी को जो है वो डिस्कार्ड कर देगा, ठीक करा देगा. जी जैसे सिंपल डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐड किया. वो एडिशन तो मैं सिखाने दे रहा है. ठीक है. यू गॉट द आइडिया व्हाट इज द यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट. ओके लेट्स सी, लेट्स गो फर्दर. ठीक है. फॉर डेसिमल सिस्टम आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है. और अगर ये मैंने एक एग्जांपल दी तो उसमें से आपने देखा कि हर डिजिट जो है इसमें 5 डिजिट से, राइट, तो हर डिजिट जो है 9 से सब्ट्रैक्ट होगा. ठीक है. एवरी डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड एंड यू गेट. तो बाइनरी नंबर देख लेते हैं. तो लेट्स से वंस कॉम्प्लीमेंट किसी का मैं लेना चाहता हूं, तो लेट्स टेक अ नंबर. ठीक है. मसलन ये है, ये नंबर है, इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रहा हूँ. और कौन सा कॉम्प्लीमेंट लेने जा रहा हूँ? वंस कॉम्प्लीमेंट, राइट. तो
उसमें मैं क्या करूँगा, सॉरी ये रेज़ पावर है, दिस इज 2 raised to power 8 है, ठीक है. So this is 2 raised to power 8 minus 1, same formula. My base is 2 and how many digits I have? I have 8 digits, right? Minus 1 minus the number, right? अच्छा 2 raised to power 8 minus 1 क्या होगा? जी 8 zeros, 7 ones. अच्छा 2 raised to power 8 क्या होगा? 2 raised to power 8 कितना होगा? 56. जी जी बाइनरी में लिखेंगे. अच्छा हमेशा याद रखें जब भी आप सब्ट्रैक्शन या कोई चीज किसी एक नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं उसी नंबर सिस्टम के अंदर रहेंगे आप. जी जी 8 पोजीशन पे 1 आ जाएगा. आप या अगर नहीं पता तो 2 का मल्टीपल का टेबल पढ़ना शुरू हो जाए. 1 2 3 सॉरी 1 2 4 8 16 32 राइट. और वो पावर्स 2 की चल रही है, ठीक है. सो और -1 उसमें से करूंगा तो बेसिकली क्या आ जाएगा? ऑल वंस क्या देखें, ठीक है. क्योंकि 1 0 0 0 0 एंड देन इफ आई सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम देयर तो लास्ट डिजिट में क्या होगा? 2 बन गया. 2 में से वो पर्टिकुलर डिजिट माइनस होगा वो 1 बन जाएगा और बाकी सारे जो जीरो से वो क्या बन गए? 1. सो यू बेसिकली गेट ऑल वंस हियर माइनस द नंबर आई गेट दिस. ठीक है जी. बाइनरी मैं कोई बेस 5 का दे दूं आपको प्रॉब्लम वो भी कर लेंगे आप. यू कैन अप्लाई फॉर्मूला और व्हाट यू कैन डू सब्ट्रैक्ट ईच डिजिट फ्रॉम इन दिस. अच्छा इसमें हमने क्या किया था? अगर डायरेक्ट करना हो सब्ट्रैक्ट ईच डिजिट फ्रॉम 1 राइट. इसमें से 1 में से 0 गया 1 और बाकी जहां 1 है वो 0 हो जाएंगे. या एक और ट्रिक इसके लिए तो बड़ी सिंपल ट्रिक है, सिंपली कॉम्प्लीमेंट कर दें. 0 था तो 1 कर दिया, 1 था तो 0 कर दिया नॉट, ठीक है. या हर डिजिट को हमने r-1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया. अगर मैं बेस 5 पे कोई एग्जांपल दूं या बेस 16 की दूं या बेस 9 की दूं तो यू कैन डू विद द फॉर्मूला. जो फॉर्मूला नहीं आता तो ट्रिक आपको पता है कि किस हर डिजिट को किससे सब्ट्रैक्ट करना है. यू कैन डू दैट, ठीक है. Got everybody understood the concept? चलें quickly now we go further. अच्छा या ये भी उन्होंने ट्रिक बता दी कि आपने zeros और 1 को स्विच कर दिया तो you get a ones complement. Remember you are getting ones complement. अच्छा let's talk about अच्छा तो ये भी एक और इम्पोर्टेंट हो गया कि द डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट या r-1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर में क्या होगा? ट्रिक क्या होगी? सब्ट्रैक्ट ईच डिजिट फ्रॉम 9 राइट. और अगर ऑक्टल है तो जाहिर है उसको 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. हेक्साडेसिमल है तो उसको f से सब्ट्रैक्ट करेंगे. f इज 50 राइट. ओके. और वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या है? वी आर स्विचिंग वंस एंड जीरोस. ठीक है. Okay. Now let's talk about the radix complement, which is r's complement. Radix is base or r, right? And in case of decimal, this will be tens complement. And in case of binary, it will be two's complement. ठीक है. अच्छा. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इसकी डेफिनेशन ये है r raised to power n minus n. दोनों में फर्क क्या हुआ? पहले वाले में उसका -1 आ रहा था. तो इसका मतलब है कि अगर मुझे ये r कॉम्प्लीमेंट चाहिए हो और मैं r-1 कॉम्प्लीमेंट ले लूं. r-1 कॉम्प्लीमेंट की क्या डेफिनेशन थी? लेट मी राइट इट अगेन. r-1 कॉम्प्लीमेंट उसकी जो हमारे पास डेफिनेशन थी वो क्या था? r raised to power n -1 minus the number. ठीक है जी. और इसमें क्या फर्क है? -1 का फर्क. तो इसका मतलब है कि अगर मुझे ये चाहिए तो इसके साथ मैं क्या करूं? +1 ऐड कर दूं तो मुझे वो दूसरा मिल जाए. ठीक है. तो मैं क्या करूं? अगर मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं क्या करूं? 1's कॉम्प्लीमेंट ले लूं. और 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? जस्ट इन्वर्टिंग.
just inverting each digit and then adding 1 to it. या मैं अगर 9th कॉम्प्लीमेंट लेना है मैंने, सॉरी 10th कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो पहले मैं 9th कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, हर डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, जो रिजल्ट आए उसमें एक ऐड कर दूँ. और इसकी भी डायरेक्ट ट्रिक देखेंगे, हमने उसकी डायरेक्ट ट्रिक सीख ली, इसकी भी डायरेक्ट सीखी, लेकिन दोनों में फर्क आपको बिल्कुल क्लियर है. ठीक है कि इसमें हम अगर 1 ऐड कर देते हैं तो वही चीज बन जाती है. ठीक है, ओके जी. सर हमने पहले बात की है अगर a माइनस b करना है तो b का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे और a ठीक है, वो हम बताएंगे कि 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है या 1's कॉम्प्लीमेंट लेना है. ठीक है, या 9th कॉम्प्लीमेंट किससे सब्ट्रैक्शन करनी है आपसे, वो मेंशन होगा जी वो मेंशन होगा. ठीक है, और कंप्यूटर नॉर्मली किससे बेसिकली किससे कॉम्प्लीमेंट करता है, 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट, हमेशा 2's कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट हमेशा जो अरिथमेटिक होती है कंप्यूटर की, इट वर्क्स ऑन 2's कॉम्प्लीमेंट. मे बी वो लेता नॉट करके और ऐड करके 1 लेता होगा, लेकिन वो हमेशा जो अरिथमेटिक करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो 2's कॉम्प्लीमेंट के जरिए होगा. ठीक है, जो रियल कंप्यूटर है इट इज इम्प्लीमेंटिंग 2's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन. 2's कॉम्प्लीमेंट लेता है, ऐड कर देता है और आंसर मिल जाता है. जी वो सब्ट्रैक्टर नहीं है ना बेटा हमारे पास. हाँ वो प्रूवियन नहीं है ना, वो हम देखेंगे एडवांटेजेस आगे चल के. अभी हम जब एग्जांपल करेंगे बाइनरी की, you'll see the example. अभी अरिथमेटिक नहीं किया, अभी हम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट का आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं. अभी जब अरिथमेटिक पे आएंगे we'll see the advantage and there we'll see कि 2's कॉम्प्लीमेंट में हमें फायदा है. ठीक हो गया जी, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया. अच्छा, तो ये मुझे बताएंगे 10th कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा. जी 6 7 7 0 ओके 6 7 7 1. ठीक है, या हर एक को मैंने 9 से सब्ट्रैक्ट किया और एक ऐड कर दिया, या मैं ये भी कह सकता हूं कि पहले को 10 से सब्ट्रैक्ट किया और बाकियों को 9 से किया. सेम थिंग, एडिंग 1 टू इट. ठीक है, पहले डिजिट को 10 से और रेस्ट जो है 9 से. अच्छा, अगर मैं ये साथ जीरोस भी लगा दूं फिर क्या सूरत हाल होगी. लेट्स से इफ आई डू दिस, इसका मुझे बता सकते हैं 10th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. ये नंबर है एक n आपके पास, इसका 10th कॉम्प्लीमेंट है. अच्छा चलें, लेट मी राइट 6 7 7 0. अच्छा, ये कह रहे हैं 1, एक कह रहे हैं 0, 1 डबल 0, और दूसरी पार्टी क्या कह रही है वो नहीं कुछ कह रहे हैं. ठीक है, तो इसका क्या ट्रिक क्या होगी. अगर आपके पास नंबर है, सो लीव द लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरोस, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम 10, रेस्ट फ्रॉम 9. सिंपल ट्रिक हो गया. सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो जीरो तो कुछ नहीं कर रहा ना, उसको ना कैरी चाहिए ना बोरो चाहिए, जीरो तो तंग ही नहीं कर रहा. ठीक है, तो जीरो वैसे ही रहेंगे, राइट. और पहले डिजिट को 10 से सब्ट्रैक्ट किया और बाकियों को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, या आपको अगर ये मुश्किल लगता है तो हर एक को 9 से सब्ट्रैक्ट कर देना, एक 1 ऐड कर देना, सेम ही आ जाएगा. अच्छा जी, 2's कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल ले लें. ये फॉर्मूले से किया आपने 2 raised to 6 minus 1, राइट. सो कुछ इस तरह का आ गया. तो इसमें क्या ट्रिक है, इसमें क्या ट्रिक है जी. व्हाट इज द ट्रिक. इसका मैंने 2's कॉम्प्लीमेंट किया, ये क्या ट्रिक है, क्या होगा. आप ये कहें कि दी
लीविंग द लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरोस, वो इसमें भी लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरोस को वैसे लिखेंगे आप, ठीक है. फर्स्ट बिट अनचेंज, रेस्ट अ कॉम्प्लीमेंट. आई कैन से दैट. देखिए यहाँ से शुरू हो, ये तो पहले ही 1 आ गया तो इधर 1 आ जाएगा. फर्स्ट बिट अनचेंज, रेस्ट अ कॉम्प्लीमेंटेड. ये 0 था, ये 1 बन गया एंड सो ऑन. ये 1 था, ये 0 बच गया. ठीक है, एवरी डिजिट इज कॉम्प्लीमेंट. तो चूज अ वंस कॉम्प्लीमेंट तो बहुत आसान है. सो इफ आई और मैंने कहा कि ये जो कंप्यूटर है मे भी वो वंस कॉम्प्लीमेंट लेके 1 ऐड करता है, लेकिन जो अरिथमेटिक करता है वो टूज कॉम्प्लीमेंट में ही हमेशा करता है. ठीक हो गया जी. अच्छा, और ये वो शॉर्टकट भी बता दिया कि टूज कॉम्प्लीमेंट लेने हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरोस को एज इट इज लिख दें, फर्स्ट 1 अनचेंज एंड स्विच द रिमेनिंग फ्रॉम 1 to 0 and 0 to 1. चले, ये भी कुछ नोट्स हैं. तो रिमूव, अच्छा हाँ, अगर मेरे पास डेसिमल पॉइंट्स आ जाए फिर क्या होगा. मसलन मेरे पास ये आ जाए 101.100, फिर क्या करूं. उसके लिए क्या रूल है. उसके लिए रूल सिंपल है कि डोंट सी द डेसिमल, जस्ट इग्नोर इट, टेक्स द टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट एंड जस्ट देन ऐड द डेसिमल लेवल. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. और फर्स्ट बिट आप चेंज, मसलन इसमें आपने करना है तो क्या होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी. सो एज इफ द डेसिमल इज नॉट देयर, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरोस को मैं वैसे ही रखूंगा. ठीक है, पहले को अनचेंज और बाकियों को और पॉइंट इधर लगा दूं. ठीक है, डेसिमल को भी मैंने हैंडल कर लिया. ठीक है जी, और दिया जी. ये हमने कहा नहीं, ये डेसिमल आ गया, पॉइंट आ गया. पहले हम सिंपल नंबर की बात कर रहे थे, सिंपल इंटीजर की बात कर रहे थे, आप डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं. तो ये जो पावर्स ऑफ -1, 2⁻⁻1 है, ये 2⁻⁻2 है, सो ऑन. ठीक है जी, ये एज इट इज रह जाएंगे, एज डेसिमल वाज नॉट देयर. तो ये बात है. रिमूव द रेडिक्स पॉइंट, रिटर्न द कॉम्प्लीमेंट, रिप्लेस द रेडिक्स पॉइंट इन द सेम लोकेशन. अच्छा, एंड अच्छा हाँ, अगर कॉम्प्लीमेंट है उसको दोबारा कॉम्प्लीमेंट में ले लूं तो क्या मिलेगा, ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा. तो ये भी रूल आपको पता चल गया. चले, अब सब्ट्रैक्शन आ गई. अब नाउ वी हैव अंडरस्टूड बेसिकली व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स. लेट्स डू सम अरिथमेटिक एंड डू सम सब्ट्रैक्शन. क्योंकि हमने कहा था कॉम्प्लीमेंट का रोल ही क्या है सब्ट्रैक्शन के लिए. अच्छा, in additional computer, use of borrow to complete expression is insufficient. Complements are used to overcome this effect. तो नॉर्मल मैथ्स में क्या करते हैं, बोरो लेते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो आप कर नहीं सकते कंप्यूटर में. ठीक है, तो हम ये नया तरीका क्या रखा हमने कि ये हमारे पास रूल्स आ गए. Let's say if we have two numbers m minus n, right? We want to subtract n from m, right? So in base r, और इसका रूल आप देख लें. हम जो m है इसको हम क्या कह रहे हैं, मिनुएंट, जो जिससे सब्ट्रैक्ट करें. एंड टू द r's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्राहेंड, ये मेरा सब्ट्राहेंड है, ये मेरा जो है मिनुएंट. ठीक है, m minus n. तो हम क्या कर रहे हैं, m प्लस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर. ठीक है. सो और अच्छा, ये किससे कर रहे हैं, the rule is for r's complement. Remember, ये किसका रूल हम पढ़ रहे हैं, using r's complement, right? या 2's complement या 10's complement की बात कर रहे हैं, उसके ये सारे रूल्स हम पढ़ रहे हैं. ठीक है. अच्छा, तो अगर आप देखें क्विकली कि मेरे पास एक m था, मैथमेटिकली अगर इसको मैं एनालाइज करूं और उसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट n का ऐड किया. n की कॉम्प्लीमेंट की क्या डेफिनेशन थी, r raised to n minus n. तो मेरे पास क्या बचा बेसिकली, m minus n, और ये r raised to n. ये r raised to n को मैं हटा दूं तो मुझे आंसर क्या मिलता है. इससे क्या साबित हुआ कि मैं अगर दो नंबर से, मेरे पास कोई भी नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, m को वैसे लिखूंगा और n का कॉम्प्लीमेंट उसमें ऐड करूंगा. और ये r raised to n आप देखेंगे ये कैरी है. जितने डिजिट से, जैसे 5 डिजिट से, तो 6 डिजिट जो होगा वो कैरी होगा. और उसको अगर मैं क्या करूंगा, डिस्कार्ड करूंगा. आई रिमूव दिस, राइट, आई गेट m minus. तो सिंपल सब्ट्रैक्शन कैसे होगी कि r's कॉम्प्लीमेंट में, लेट्स क्विकली टेक एन एग्जांपल.
ठीक है, मैं एक दो नंबर्स ले लेता हूँ। लेट्स से माय आई वांट टू, अच्छा इसमें ये है, यानी ये रूल है, ठीक है, कि चलें लेट्स फर्स्ट फॉलो द रूल्स एंड देन टेक द एग्जांपल, ताकि आपको पता चल जाए कि ये मे बी एम छोटा भी हो सकता है, एम बड़ा भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, एक छोटा माइनस बड़ा नंबर, उस केस में क्या रूल है, या ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी द रूल्स। सो इफ एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, अगर एम जो है बड़ा है या उसके बराबर है, तो इट विल प्रोड्यूस एन एंड कैरी। तो रिजल्ट क्या हुआ, इट डेफिनेटली इट विल प्रोड्यूस एन कैरी, ठीक है। और उस कैरी के साथ सलूक क्या करना है आपने, जस्ट डिस्कार्ड, ठीक है। और आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसको डिस्कार्ड कर दूं तो m-1, मुझे सब्ट्रैक्शन वाला रिजल्ट मिल गया, ठीक है। सो दैट्स द सिंपल मेथड। लेट्स टेक वन क्विक एग्जांपल, लेट्स टेक अ बिगर नंबर, ठीक है। लेट्स से मैं छोटे नंबर ले लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी बेहतरी हो, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट 3 to 6 minus 2, 7, 8, ठीक है। और मेरे पास m क्या है इसमें, दिस इज माई m एंड दिस इज माई m, ठीक है। तो मैंने क्या करना है जी, m को वैसे लिख देना है, और मेरे पास कंडीशन क्या है, m इज ग्रेटर देन m या इक्वल, इसमें ये दोनों में यही रूल फॉलो होगा। अच्छा क्या आ गया जी, 3 to 6, और इसमें मैं ऐड क्या कर रहा हूं, n का कॉम्प्लीमेंट। तो आप बता सकते हैं मुझे जो 10th कॉम्प्लीमेंट है, 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ n क्या होगा जी, जी ये देखें क्या 10th कॉम्प्लीमेंट का क्या तरीका कार है, लास्ट को 10 बाकी 9, राइट। सो व्हाट यू गेट है 2 and 7, इसको मैं ऐड करूं तो क्या मिलेगा जी, 8, 4, 0, 1। तो ये देखें थर्ड डिजिट की हम सब एडिशन कर रहे थे, तो ये जो मिला मुझे ये क्या है, एंड कैरी। इस एंड कैरी के साथ मैं क्या करूँ, सो आई डिस्कार्ड, थ्रो अवे this one, right, discard this, throw away this, so मेरे पास आंसर क्या आ गया, 048। तो 3 to 6 में से ये माइनस कर तो यही आता है, किधर जी, ऐड ही करना है, I have to add it। हाँ वो r-1 में रूल था, r-1 में ये देखो, ये हम रूल किसके डिस्कस कर रहे हैं, r कॉम्प्लीमेंट। इसमें हमने ये कंडीशन है आपके पास, ठीक है, ये कंडीशन है कि अगर m आपका बड़ा है n से या बराबर है, तो उस वक्त एंड कैरी लाजमी आएगा, और उस एंड कैरी के साथ क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि किससे, वो आपको जब हम सब्ट्रैक्शन करवाएंगे आपको डेडिकेटली बताएंगे कि आपने 9th कॉम्प्लीमेंट से करना है या 10th कॉम्प्लीमेंट से करना है, ठीक है। जी जी, और जो 4th डिजिट है वो जाहिर है कैरी है, जो आपकी कैपेसिटी थी उससे एक डिजिट एक्स्ट्रा आ गया, वो कैरी आ गया। ये रूल समझ आ गया जी। अच्छा नेक्स्ट इज इफ m इज लेस देन n, अब ये भी तो है ना कि ये छोटा हो, जैसे मैं करूँ लेट्स से 4 - 9, राइट, एक छोटा नंबर बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, अरिथमेटिक में तो कैन हैव एनी 2 डिजिट्स, राइट। तो इस केस में क्या होगा, इट विल नॉट प्रोड्यूस एन एंड कैरी, इस केस में आपको एंड कैरी नहीं मिलेगा। जब एंड कैरी नहीं मिलेगा तो आपने उसके साथ क्या सलूक करना है, जो आपके पास सम आया था उसका दोबारा आर्स कॉम्प्लीमेंट लेना, ठीक है, वो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगर एंड कैरी नहीं आता तो पहले एंड कैरी आया तो डिस्कार्ड करके आंसर मिल गया आपको जो सम था, अब सम का दोबारा एक और कॉम्प्लीमेंट लेंगे, बिकॉज इफ आई सब्ट्रैक्टिंग लेट्स से 5 - 9 which is -4, right? तो बेसिकली जो आंसर आया वो कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में है, तो उसका एक्चुअल आंसर लेने के लिए मुझे दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, फिर मुझे पता चल जाएगा ना ये -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो अगर ये रूल क्या हो गया मेरे पास कि अगर m उससे छोटा है तो जो सम आता है उसका दोबारा आर्स कॉम्प्लीमेंट लें
और पुट अ नेगेटिव साइन ताकि आप लोग को पता चले कि ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, गॉट द आइडिया? सर ये n माइनस m हो जाएगा। नहीं, वो नेगेटिव में एक आंसर होगा ना, कॉम्प्लीमेंट में आंसर होगा। लेकिन हमें जानने के लिए कि ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, उसको दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें वो नंबर पता चलेगा ना। लेट्स से अगर -4 मेरा आंसर है, उसको मैं दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, ठीक है, तो वो क्या मिल जाएगा 4, मुझे पता चल जाएगा ये -4 है एक्चुअली। ठीक है, तो ये देखें, ये एक और एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें ये देखें ट्रिक, एक और आपने चीज का ख्याल रखें कि द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ m एंड n शुड बी द सेम। अगर नहीं है तो अपनी तरफ से 0 अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कितने डिजिट्स हैं जी? 1 2 3 4 5, यहाँ कितने 4। तो आपने क्या करना है, एक एक्स्ट्रा 0 लगा देना। यू हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा 0 एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग द कॉम्प्लीमेंट। अगर वो एक्स्ट्रा 0 नहीं लगाएंगे तो आपका जो है ये अपनी तरफ से आपने एक 0 इधर लगाना है टू मेक दी नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल। टाइम हो गया नहीं? अच्छा, ठीक हो गया। एंड और ये कॉम्प्लीमेंट किया, ये सम आ गया आपका, और इसमें एंड कैरी था, उसको क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया, तो बाकी क्या आंसर होता है? ठीक है, और अगर एंड कैरी नहीं आता फिर क्या करेंगे? नहीं, वैसे नहीं, उसका टूल्स कॉम्प्लीमेंट लेके बताएंगे कि ये किस चीज का नेगेटिव है, किसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जैसे ये उल्टा कर दिया आप, ये क्विकली देख सकते हैं फिर हम। ठीक है, तो इसमें देखें आप एंड कैरी नहीं आया था। ठीक है, एंड कैरी नहीं आया और डिजिट्स हमने बराबर रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो डिजिट्स इक्वल नहीं रखेंगे तो वो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये आ गया। अब इसका दोबारा क्या किया, टेंस कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली जो आंसर मिला, बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये -60373 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट है, खुद कॉम्प्लीमेंट है। ये हमने कहा था ना कि जब एक नंबर है उसको कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो बेसिकली वो -n को शो करता है। जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और उसको दोबारा अगर कॉम्प्लीमेंट ले तो वो पॉजिटिव नंबर आ जाता है। तो हमें ये एक, क्योंकि एंड कैरी नहीं आया था तो हमें ये पता लगा कि आंसर अब नेगेटिव है, क्योंकि m इज लेस देन n। आंसर क्या है, नेगेटिव है। ये कॉम्प्लीमेंट नंबर है। किस चीज का कॉम्प्लीमेंट है, इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लें और हम ये नंबर आ गया तो हम कहेंगे ये -60373 को रिप्रेजेंट कर। आंसर ये था, आना था और कॉम्प्लीमेंट आ गया। हाँ, यानी एक्चुअल डेसिमल में आंसर ये है, लेकिन आपके कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में ये पढ़ा। चलें, ओके जी, वी स्टॉप हियर एंड नेक्स्ट टाइम